سر یہ پارٹی آپ کو بنائے ہوئے اب 2 دن ہو گئے ہیں، فیڈ بیک آپ کو کیا آ رہا ہے پارٹی کا؟ اور وہی سوال جو سب کے لبوں پر ہے کہ یہ پارٹی چلے گی؟ پارٹی کیوں نہیں چلے گی؟ اظہر یہ ہوتا ہے کہ پارٹی بنا کون رہا ہے اور وہ اپنے کردار میں اور اپنے مزاج میں وہ کتنا سنجیدہ ہے، اور اس کے وسائل، یعنی پارٹی کے وسائل، اس کی اپنی ہیلتھ، اس کی مینٹل کیپیسٹی، اس کی مینٹل کیپیبلٹی، اس کا بیک گراؤنڈ، جو گروپ بھی پارٹی بنا رہا ہے اس کے تمام یہ کیا لوازمات لفظ کہہ لیں یا اس کے ان فیکٹرز کو کیا وہ اچیو بھی کرتا ہے اور اس کے اندر موجود ہیں، تو تب جا کر ہم یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ کام ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور کیا یہ کام سنجیدگی سے کیا جا رہا ہے، پہلی چیز۔ پھر دوسرا سب سے اہم چیز یہ ہے اچھا، کہ پارٹی اناؤنس کس وقت ہو رہی ہے اور لانچ کب ہو رہی ہے، اور پارٹی کا جو بنیادی جہاں سے لوگوں نے آنا ہے وہ کون لوگ ہیں۔ 9 مئی جو ہے، 9 مئی ایک کریٹیکل تھریش ہولڈ ہے، لائک برنک، ایک اس کے بعد ایک ایسی سٹیپ پہ پہنچ گیا تھا تحریک انصاف کا پورا معاملہ کہ اس کے آگے کھائی ہے، اور ملک ایک پولیٹیکل پروگریسو پولیٹیکل پارٹی سے جو پچھلے ہم 1 سال سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ اس نے ایک پولیٹیکل پارٹی سے ہٹ کے ایک نئے اڈاپشن کی، ایک نیا راستہ چنا، اور وہ ریزسٹنس کا راستے سے ہٹ کے فرکشن کا اور ڈیزاسٹر کا راستہ تھا، اور اس راستے کے اوپر وہ چل پڑے اور سٹیئر کرتے کرتے اپنے میسز کو بھی، لوگوں کو بھی ساتھ لے جا کے آخر وہ ببل برسٹ ہوتا ہے 9 مئی کو آ کے، اور وہ اس کو پورا ایک منظم طریقے کے ساتھ برسٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن کانسیکوینسز لازمی نہیں ہوتا کہ جو آدمی ایک ایونٹ کر رہا ہو کانسیکوینسز ویسے ہوں۔ تو جب یہ 9 مئی کا کام ہوا تو اس وقت پارٹی کا تو ہم پہلے سوچ رہے تھے، جہانگیر خان واز تھنکنگ، علیم خان بھی سوچ رہے تھے، یہ سارے جو اچھا میرے جیسے جو یہ لوگ ہیں یہ تو پاکستان تحریک انصاف سے بہت عرصہ پہلے سے علیحدہ کر دیے گئے، انٹینشنلی ان کو دور کر دیا گیا۔ اب 9 مئی کے بعد وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں گزاری تھیں تحریک انصاف کے اندر، محنت کی تھی، میں ان کی انٹینشنز پہ بھی ڈاؤٹ نہیں کروں گا، نہ ان پہ طنز کروں گا، نہ پارٹیز میں تمام لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، وہ ان بڑی باتوں کے ساتھ الیکشن کی طرف جانا چاہتے تھے، وہ ان بڑی باتوں کے ساتھ عمران خان کے ساتھ الیکشن کی طرف جانا چاہتے تھے، لڑائی کی طرف تو نہیں جانا چاہتے تھے، اور نہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ملک کے اندر فساد ہو۔ تو اب 9 مئی کے بعد ان کے پاس کیا آپشن تھی؟ آپ نے دیکھا ہوگا پارٹی کی جو لانچنگ ہے وہ اتنی زبردست اور شاندار ہے کہ اس کے اندر بہت بڑی تعداد لوگوں نے جو میٹر کرتے ہیں اور جن کی اپنے علاقوں کے اندر ایک پورا وزن ہے، وہ تمام لوگ اس کے اندر شامل تھے۔ یہ تو ہے لانچنگ۔ پاکستان کا ایک اور کلچر بھی ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ جی کیا ہوتا ہے، ذرا آپ کر کے دکھا دیں، میچ آپ کھیل لیں، تو اگر آپ نے اچھا لانچنگ ہو گئی تو چیزیں ٹھیک نظر آئیں تو ہم بھی جوائن کر جائیں گے۔ ہمارے کتنے دوست ہیں، لیکن روکڑی صاحب گروپس ہیں، اس پر کچھ تنقید بھی ہے، ظاہر بات ہے، میں چاہتا ہوں دونوں حوالوں سے آپ جواب دیجیے گا۔ ایک تو یہ کہ بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ لیڈر آگے ہیں لیکن ووٹر جو ہے وہ آئے ہیں یا نہیں اس کا کوئی نہیں پتا، اور دوسرا آپٹکس بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، کچھ ویژولز ہم نے سوشل میڈیا پر دیکھے، یہ تحریک انصاف کے جو سابق رہنما تھے ان کے چہرے اترے ہوئے تھے، اور ان سے کوئی لوگ پارٹی کے حوالے سے کوئی اچھا نتیجہ یا اس کی لانچ کے حوالے سے کوئی اچھا نتیجہ نہیں لے رہے، تو اس امپریشن کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ نیچرل ہے اظہر، یہ ہونا تھا۔ 3-4 دن پہلے تک کچھ لوگ کس مقام پر کھڑے تھے اور کیسے تھے، اور اچانک وہ اس طرح کی جب اس کیفیت میں آئیں گے تو ان کے لیے اس کو فیس کرنا کیا آسان ہوگا؟ ٹو بی ویری فرینک بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن وہ آئے کیوں؟ 9 مئی ایک واقعہ ہے جس کے یعنی میں جس چیز کو دیکھتا ہوں، میں کیوں ان کو ایج دیتے ہوئے، ان کو مثبت سمجھتے ہوئے ان کے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں کرتا ہوں جس سے وہ ڈسہارٹ ہوں کہ وہ کو فوج میں بھرتی ہو کر بارڈر پہ جنگ تو لڑنے گئے نہیں تھے کہ بارڈر سے وہ پسپائی کر کے واپس آ گئے۔ ہماری قوم کا مزاج کیا بنا ہوا ہے؟ عمران خان نے مزاج دے کیا دیا ان لوگوں کو کہ فرام پارٹی کے 9 مئی کو کیا پارٹی نکلی ہے عمران خان کے ساتھ؟ 1000 سے زیادہ، 1500 سے زیادہ کوئی بندہ نہیں نکلا۔ جو کلٹ کی صورت اختیار کر گئی تھی پاکستان تحریک انصاف وہ نکلی ہے، اور اس کلٹ سے کون خوفزدہ نہیں ہے؟ اس کلٹ کے جو بیہیویئر ہے سوشل میڈیا سے لے کے باہر، کیا یہ خوفزدہ نہیں ہے؟ انسان اندر سے اپنے آپ کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، تو یہ فیکٹر اس پہ ہم کہیں کہ جی وہ کیوں پریشان؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو رہنما آپ کے ساتھ آئے بھی ہیں ان کے لیے بھی یہ مشکل فیصلہ تھا، ان کے لیے بھی یہ مشکل فیصلہ تھا اس پارٹی کی لانچنگ کرنا؟
या वहां पर मौजूद होना? नहीं, लॉन्चिंग नहीं नजर, लॉन्चिंग तो हम लोग कर रहे थे, ये लोग हमें ज्वाइन कर रहे थे। उनके लिए मुश्किल फैसला ऐसे था कि हमारा कल्चर ऐसा है, हमारे कल्चर के अंदर एविडेंस, हमारे कल्चर के अंदर बुरहान, हमारे कल्चर के अंदर लॉजिक को कहां एक्सेप्ट किया जाता है। लोग इमोशनली नेगेटिव चार्ज हो जाए तो उसका यानी आपकी लॉजिक सुनता कौन है? तो जो सोशल मीडिया के ऊपर बदतमीजी और बदतहजीबी का एक बहुत बड़ा तूफान है, उसने तो आपके मुल्क के हुक्मा और संजीदा हकीम और फतीन लोगों को खामोश कर दिया, जाजूद जानते हुए कि वो बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन इनकी खौफ की वजह से वो भी नहीं बोलते। तो ये बेचारे क्या करते? इनकी परेशानी जायज थी। लेकिन दूसरा जो आपने सवाल किया था कि क्या वोटर आता है, बताइए जो वोटर वाली बात है जी, वोटर वाली बात कि वोटर साथ आया है या नहीं, इसका तायुन कैसे होगा, या वो क्या आपके साथ है? सबसे अहम चीज ही यही है कि इस पार्टी का बनाने का मकसद ही यही था कि ये तमाम लोग वो हैं कि जिन्होंने कब से मेहनत शुरू की। अगर मैं अपने आप को देखूं, मेरे तो तारीख इंसाफ से शुरू हुए, मेहनत करते रहे, एक स्टेज पे जाके पहुंचे, और एक स्टेज पे जाके इन्होंने जब रास्ता चेंज किया, हमने ऑब्जेक्शन की तो इन्होंने निकाल के बाहर फेंक दिया। तो हमारी वो तमाम मेहनत क्या जाया हो गई? मेहनत कभी भी जाया नहीं होती। आज आप इस चैनल के अंदर मेहनत कर रहे हैं, आपको अल्लाह ताला ने एक मकाम दिया है, आप चाहे जिस भी चैनल में चले जाएंगे, ये वाली चीज आपकी जाया नहीं होगी। हमारा टारगेट था क्या? पीटीआई का जो वोटर है, क्या वो नून को वोट देगा? कभी भी नहीं देगा। वो क्या पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को वोट देगा? नहीं देगा। उन्हीं की जिद में तो ये वोटर यहां पे खड़ा हुआ था। अब उन तमाम वोटर्स का हम सिंसेरली, ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ और एक अच्छी नीयत के साथ जब हमको एक दिफा करेंगे तो वो वोटर तो हमारा ही है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या ये वोटर इमरान खान का है? यानी एक ट्वीट की गई इमरान खान की अपनी पार्टी के पेज से कि आप दरख्त को भी खड़ा करोगे तो वोट दरख्त का है। इससे ज्यादा एम्बैरेसमेंट या इससे ज्यादा इलॉजिकल कोई बात कर सकता है कि कहां पर मेरिट की बातें, कहां पर हिकमत की बातें, कहां पर डिलीवरेंस की बातें। ये जरा जी ये बताइएगा, अब जारी बात है आपकी बड़ी इस पर सोच विचार है कि पार्टी ने आगे क्या करना है। नून लीग की तरफ से कुछ इशारे आए हैं, को रहनुमाओं ने बातें की हैं कि मिलजुल कर आपके साथ चलेंगे या आपका और उनका रास्ता जो है वो इकट्ठा हो सकता है। तो क्या नून लीग के साथ कोई वर्किंग रिलेशनशिप बनाने का सोच रहे हैं आप? अगर मेरा इसके ऊपर जाती जो इसका जवाब है वो ये है कि हम उस तमाम पॉलिटिक्स को जो कि मनफी चार्ज करके, नफरत की बुनियाद पर, जहां पे बिग नो करके बाकी तमाम पार्टीज को समझा गया कि ये सारी मुल्क दुश्मन है, और समझा गया कि मैं और मेरे साथ जो हैं ये हक पर हैं और बाकियों को बातिल पे लेके जाया गया, इस चीज का खात्मा जरूरी है। एक दूसरे को बर्दाश्त करना जरूरी है। और कोई भी पार्टी, क्या तहरीक इंसाफ जब तक गवर्नमेंट में थी तो क्या इल्हाक करके दूसरी पार्टीज के साथ नहीं बैठी थी? इल्हाक अगर जस्ट कॉज के लिए है और बेहतरी के लिए है और अच्छाई के लिए है तो नून है, चाहे पीपीपी है, चाहे कोई भी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, मेन पार्टी, हमें क्यों इतराज होना चाहिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर कंट्री? या मुझे पता है अगर मैं क्या करना चाहता हूं और मेरी इंटेंशन ठीक है और मेरा मुल्क है ना, मेरे मुल्क की पार्टियां हैं ना, ये कोई इंडिया की पार्टियां तो है नहीं कि हम कल हमारे ऊपर कहा जाए कि क्यों किया जा रहा है। तो ये जो एक बयानिया फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, नेगेटिव इसको लेके जाया जा रहा है, और ये कि जी इनके पास वोटर नहीं है, आप थोड़े से दिन गुजरने दें, आप देखिएगा कि वो लोग जो सेकंड वेव इंतजार में बैठी हुई है, आप जब उनका आना देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि ये पार्टी स्वेल करती है, मजबूत होती है या कमजोर होती है। तो सर कुछ बड़े नाम तो अभी भी बाहर हैं। आज क्योंकि मेरी 2 दिन पहले महमूद मौलवी साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा था कि परवेज खटक से कोई बात चल रही है, कोई एक ये भी ग्रुप है, एक और भी ग्रुप है। तो खटक साहब ने आज तरदीद कर दी है, तो उनसे को आप लोगों का राब्ता था? क्या कोई बात हुई थी पार्टी में उनकी शमूलियत के लिए? सर देखिए, खटक साहब की तरदीद जस्टिफाइड है। कोई भी सियासतदान जिसकी अपनी स्टैंडिंग है, जिसकी अपनी वर्थ है, वो कभी भी कोई कच्चा कलाम या ऐसी बात नहीं करेगा कि उसकी अपनी जात के ऊपर नुक्स आए। ये बड़े सियासतदान हैं और इन्होंने बड़ी मेहनतें की हुई हैं। मैं पर्सनली मेरी पर्सनली ख्वाहिश भी है और कोशिश भी होगी कि खटक साहब पार्टी ज्वाइन करें और पार्टी की कमान संभालें और पार्टी को लेकर आगे चलें। वाई खटक साहब?
खट्टक साहब को मैं बाकी तमाम जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं उनमें ज्यादा एज देता हूं क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी के अंदर लोगों को पूरे पाकिस्तान में से साथ मिलाकर चलने की कैपेबिलिटी मौजूद है और वो मामलात को समझने वाले इंसान हैं और पार्लियामेंटेरियंस हैं वो उन पर एतमाद करते हैं। तो खट्टक साहब की पर्सनैलिटी ऐसी है कि हम पूरी, मैं तो अपनी जाती तौर पे भी कोशिश कर रहा हूं कि खट्टक साहब ज्वाइन करें, लेकिन खट्टक साहब का सोच समझकर और एक तरीके के साथ आना वो जस्टिफाइड है। अल्लाह के हुक्म से खट्टक साहब को हमारे साथ ही होंगे। जी सर। अच्छा, और कुछ बड़े नाम, जाहिर बात है, एक तो असद उमर अभी ही सिटिंग आउट, वो अभी तक जो है वो बैठे हुए हैं, और दूसरा शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात तो हुई थी, फवाद चौधरी की, इमरान इस्माइल की, महमूद मौलवी जाकर मिले थे, पता नहीं क्या बात हुई बहरहाल, मगर आज उन्होंने तनकीद बड़ी की है। तो उनकी तनकीद का जवाब है पार्टी के ऊपर शाह साहब की? सर मैं शाह साहब के मामले में बहुत रिजर्व कमेंट रखता हूं। शाह साहब एक ब्यूरोक्रेटिक टाइप पॉलिटिशियन। अच्छा। और शाह साहब का एक अपना मिजाज है और उनका एक अपना बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड, जो ज्यादा उनकी पॉलिटिक्स के ऊपर असरअंदाज है। जो दूसरा नाम आपने असद उमर साहब का लिया, असद उमर साहब भी एक कॉरपोरेट कल्चर से आकर पॉलिटिक्स के अंदर आए हैं और अभी वो जो कॉरपोरेट कल्चर का मिजाज है वो अभी तक उनकी पर्सनैलिटी पर हावी है। असद उमर साहब के लिए ऑल ऑफ अ सडन अब्रप्टली बाहर आना और आकर ऐलान कर देना वो उनके लिए मुश्किल था, उनकी पर्सनैलिटी में वो चीज मुश्किल था। लेकिन ये दोनों, शाह महमूद कुरैशी साहब को मैं छोड़ता हूं, लेकिन असद उमर को अगर मैं कहूं तो असद उमर को कहां का छोड़ा इस पूरे 9 मई के बाद। अगर कोई आदमी इस वक्त तन्हाई का शिकार है और एक आदमी अगर इस वक्त पूरा एक बेबसी का शिकार अगर देखते हैं तो असद उमर साहब की आपको नजर आएगी। लेकिन हमारी कोशिश पूरी होगी कि उनको उनके मकाम के मुताबिक असद उमर को उसकी जो डिग्री। अच्छा रोकड़ी साहब, ये बताइएगा, इंतखाबात चाहते हैं आप भी और जल्द इंतखाबात चाहते हैं? मतलब जल्द से मुराद ये कि जो भी अर्लीस्ट डेट पॉसिबल। मेरी जाती राय अगर आप लें तो मैं उस पे बोलूंगा या इज्तिमाई राय के ऊपर आप कहेंगे, जाती बेहतर होगी। मेरी जाती राय सर मैं तो ये पूछना चाहता हूं, पार्टी तैयार है इलेक्शन के लिए या नहीं आपकी? सर देखें, पार्टी वजूद में आ रही है 2 दिन पहले, और जब कोई चीज आ जाया करती है मैं तो बिलीव करता हूं कि जिस भी इवेंट या बला, एक पुरानी कहावत है कि जिस भी बला या जिस भी मुश्किल या जिस भी चैलेंज के दरमियान एक रात का वक्फा हो तो उससे घबराया नहीं जाता। तो इसलिए मैं तो किसी सूरत घबराने वाला इस कायल नहीं हूं कि घबराया जाए और चीज से भागा जाए। ये तो है मेरा जाती एक एटीट्यूड, या मैं कहूं कि मैं जिस पे अपनी जिंदगी को इस्तवार करता हूं। लेकिन दूसरी तरफ आए कि मुल्की हालात को देख के अच्छा मैं ये देखूं कि इस शदीद तरीन केओस के खात्मा जैसे हो रहा है और इस खात्मे के बाद जब तक रिट ऑफ द लॉ और गवर्नमेंट की रिट एस्टैब्लिश नहीं होती और इदारे अपनी अपनी जगह पर सुकून नहीं पाते और लोगों के ज़हन से जो एक मनफी इर्ताश, उनके जो रुझान हैं, वो जो नेगेटिविटी हुई है और कानून अमल नहीं करता पिछले पूरे केसेस में। इमरान खान शुड फेस द लॉ, इमरान खान शुड गो टू द कोर्ट्स, इमरान खान शुड फेस ऑल द केसेस, और उसके बाद लोगों के लिए आसान है फैसला करना कि ये बंदा क्या ठीक है कि गलत है। यानी एक चीज को अभी तक लोग जज ही नहीं कर पा रहे। लोग तो जो उसके साथ हैं, यंग जनरेशन स्पेशली, वो तो ऑब्सेस्ड है। ऑब्सेशन एक ऐसी चीज है कि जिसमें दिमाग तो इतना काम कर नहीं रहा होता। मेरी पर्सनल राय में इलेक्शन बहुत आगे भी नहीं जाना चाहिए, बहुत आगे भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर एक कड़ा एहतसाब हो जाए कबल अज इंतखाब, कड़ा एहतसाब कबल अज इंतखाब, और ये जो हमारा इकोनॉमी के अंदर 2-3 चीजें ठीक कर दी जाएं तो बहुत बेहतर होगा वो।